नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश राज्यपाल में। मैं हूं कृति मिश्रा। Assam, the gateway to Northeast. As per the census of 2011, the total population of Assam is 3.12 crore. The population of Assam forms 2.58% of India. The state is diverse with a variety of ethnic groups and languages. Assam covers an area of approximately 78,438 square kilometers. The literacy rate in Assam is around 72.19%, with male literacy at 77.85% and female literacy at 66.27%. Assamese is the official language of the state, widely spoken and used in education and administration. Other significant languages include Bengali, Bodo, and Hindi. Assam's economy is primarily based on agriculture, with tea production being the state's most prominent industry. Assam contributes about 51% of India's tea production. The gross state domestic product was approximately 4.09 lakh crore in 2021-22. Assam is India's gateway to Northeast and acts as a vital link for trade with Southeast Asian countries. It is well connected by rail, road, ports and airports. Key attractions include Kaziranga National Park, a UNESCO World Heritage Site famous for its population of one-horned rhinoceros. Manas National Park, another UNESCO World Heritage Site known for its biodiversity. Kamakhya Temple, one of the oldest Shakti peeths in India, located in Guwahati. It attracts pilgrims from across the country. Majuli, the world's largest river island, located in the Brahmaputra River, known for its rich culture, and Vaishnavite monasteries. A historical town known for its Ahom era monuments like Ranghar, Talatal Ghar and Sivsagar Sivadol. Assam has produced several notable Padma awardees. Bhupen Hazarika, posthumously in 2019 for art. Gopinath Bardoloi, 1999 for public affairs. Padma Shri, Dr. Biru Balarabha. Assam has growing sports culture with notable athletes. Hima Das, the first Indian athlete to win a gold medal in a track event at the IAAF World U20 Championships. Deepankar Bhattacharjee, a former Indian badminton player who represented India at Barcelona and Atlanta Olympics. Lovlina, a boxer who won a bronze medal at the Tokyo 2020 Olympics in the women's welterweight category. Assam also has a rich history of military service with several gallantry awards. Captain Jintu Gogoi awarded the Veer Chakra posthumously for his bravery during the Kargil War. Havaldar Hangpan Dada, he was posthumously awarded the Ashok Chakra, India's highest peacetime military decoration, in August 2016. Lieutenant General Pranab Kumar Bharali, an officer in the Indian Army recognized for his distinguished service. Assam is also the largest tea producing region in the world, known for Assam tea. The industry is a major employer and contributor to the state's economy. Assam is one of the oldest oil producing regions in Asia, with Digboi Refinery being the oldest operational refinery in the world. Assam is known for its unique handloom products, especially Muga silk, which is exclusive to the state. Muga silk is also known as the golden silk. The state also has a vibrant handicrafts industry, producing items like bamboo and cane, pottery and traditional Assamese jewelry. Assam's economy is heavily reliant on agriculture, with rice being the major crop. Other significant crops include jute, sugarcane and mustard.
The tourism industry is growing with Assam being a gateway to northeastern states of India, attracting both domestic and international tourists. The cultural centres include Guwahati, the cultural hub of Assam, hosting events like the Brahmaputra Literary Festival, Rangoli and Bihu celebrations. Majuli, known for its cultural heritage. Tejpur, a historical and cultural centre known for its association with mythology, art and literature. And in this edition, Sunset TV exclusively holds a conversation with Governor of Assam. मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान असम और मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी। नमस्कार। सर, अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं तो सरस्वती शिशु मंदिर में आप अध्यापक के रूप में बहुत सक्रिय रहे, उसके बाद मत्स्य विभाग के अध्यक्ष भी रहे। राम मंदिर के आंदोलन में आपने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, और अगर मैं राज्यपाल की भूमिका की बात करूं तो पहले सिक्किम, अब असम और मणिपुर। क्या अनछुए पहलू रहे ज़िंदगी के? क्या रोचक कहानियाँ? कैसे शुरुआत हुई? कैसी रही पब्लिक लाइफ? मैं समझता हूँ कि नियति जिधर मुझे ले चलती गई और मैं उधर जाता गया। प्रारंभ के दिनों में मैं शिशु मंदिर का आचार्य के रूप में मैंने अध्यापन कार्य से शुरू किया, और प्रारंभ से ही कुछ मेरे विचारधारा में राष्ट्र, समाज, संस्कृति, परंपरा, मूल्य के भाव भरे गए थे। ऐसी संस्था से मैं जुड़ा था। मैं स्पष्ट कहूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक था। जब मैं बच्चों के बीच में एक शिशु मंदिर के आचार्य के रूप में भी जब पढ़ाता था तो प्राय गीत, कहानी आदि, हम नन्हे मुन्ने हों चाहें पर नहीं किसी से कम, आकाश तले जो फूल खिले वो फूल बनेंगे। बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार दिया कि यह जात पात क्या है, यह ऊंच नीच क्या है, दीवार उठाने से तो साथ छूटता है। तो ऐसे संस्कार मैं गीतों को साथ करते करते बीच के कालांतर में इमरजेंसी आ गई, और इमरजेंसी में चूँकि शिशु मंदिर का आचार्य होने के नाते हम सबके ऊपर कुछ कठिनाइयाँ भी थीं, और भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष उस समय भी हम लोग सिखाते थे। उस समय की सरकार को कुछ गलतफहमी हो गई थी कि यहाँ शिक्षा देना में तमाम कठिनाइयाँ हैं, तो हमको भूमिगत रह करके भी कुछ दिनों तक काम करना पड़ा था। हाँ, मैं इमरजेंसी में मुझे उस शिशु मंदिर को कुछ समय के लिए छोड़ना भी पड़ा था, तमाम ऊपर नीचे, लेकिन उसमें मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी मैंने भागीदारी की। और उस समय मुझे एक बहुत गीत पसंद था, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों तुम्हें द्वार पर क्रांति बुलाने आई है। ऐसे गीतों को भी गाया और लगे थे। यात्रा जहाँ नियति चलती रही वहाँ वहाँ चलता गया। इस प्रकार से वैसा करते करते फिर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे मन में एक बार आया, जब इमरजेंसी कम हुई तो थोड़ा उसका प्रभाव कम हुआ। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शक्तियाँ मजबूत होती गईं, और हम लोग उस समय भी कहा करते थे, गहन रात बीती और उजाला हुआ है, उषा ने पहन है लिया ताज देखो, भिखारिन बनी यामनी जा चुकी है। ऐसे गीत भी गाए, और कभी गीत गाया, उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। ऐसा भी गीत गाया। गीत के प्रसंग बनते गए और अपनी यात्रा भी बदलती गई। फिर मेरे मन को आया कि क्यों न हम गांव में, चूँकि शिशु शिक्षा गांव की ओर, एक ऐसा मैंने 1976 में मैंने शुरू करी, और मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कोई शिशु विद्यालय, नर्सरी स्कूल बिल्कुल नहीं के बराबर थे, उन गाँवों के सुदूर गाँव में जा कर के हमने सोनभद्र के अंचलों में, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में, चंदौली, मिर्ज़ापुर, प्रयाग क्षेत्र भी है, हनुमानगंज, सहसों, इन सब तमाम क्षेत्रों में मैंने विद्यालय की एक छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल चलाया, और उनको एक प्रेरणा गीत और इस प्रकार से अपने संस्कृति के भाव से जोड़ने का प्रयत्न किया। कालांतर में फिर धीरे धीरे यात्रा बढ़ती गई। राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारियां, राजनीतिक क्षेत्र में भी आया। वहाँ मैं संगठन की इकाई का अध्यक्ष बना। फिर उसी समय माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम का चेयरमैन बना। चेयरमैन बनने के साथ ही जब मैंने चार्ज लिया तो उस समय मेरा कॉरपोरेशन घाटे का था। मैंने अधिकारियों के साथ मैं बैठा, हमने कहा क्यों होते हैं घाटे का, क्यों निगम, कोई चीज़ घाटा क्यों?
माननीय कल्याण सिंह जी भी एक संकल्प शक्ति के मजबूत लीडर थे और उन्होंने कहा कि जिस निगम को खुदा नहीं चलाएगा उसे कल्याण सिंह नहीं चलाएगा, लोग अपने घाटे को पूरा करें चाहे जैसे चलाएं। मैंने भी अपने अधिकारियों के साथ बैठा और तमाम उसके अपने कुछ निदेशक मंडल में अपने कुछ विद्वान लोगों को नियुक्त करके उनके वैज्ञानिक सलाह से और हमने उस मत्स्य निगम के घाटे को पूरा किया और मैं पंचम वेतन देने की मैंने संस्तुति करी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मांगा। उसके बाद यात्रा बढ़ती गई, फिर और भी तमाम संगठन के कई पदों पर मैं बीजेपी एसटी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और अनेक दायित्वों को निर्वहन करते हुए फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब वहाँ आते हैं उसमें काशी क्षेत्र के अध्यक्ष के नाते काम किया और करने के बाद धीरे धीरे और भी यात्रा बढ़ती गई और 2015 में मुझे विधान परिषद में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर बना, उसमें मैं अच्छे मतों से निर्वाचित हुआ। राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? हाँ, क्या प्रेरणा स्रोत रहा? प्रेरणा स्रोत तो मैं राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना प्रारंभ से थी और मुझे वो विचारधारा पसंद थी जिसमें नेशन फर्स्ट हो और नेशन फर्स्ट मुझे उस समय भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखा। यद्यपि मैं जनसंघ काल से ही काम कर रहा था, उस समय भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे हर हाथ को काम हर खेत को पानी, ऐसा उनका उस समय का मिशन उस समय भी पसंद आया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा मुझे पसंद आया और ऐसा करते हुए उसी विचारधारा वही मेरा पाथेय बना, उसी रास्ते पर निरंतर चलता गया। बिल्कुल सर, अब अगर मैं बात करूं आपके करंट रोल की तो पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष लगाव रहा है। सिक्किम में हमने बहुत सफल कार्यकाल आपका देखा जी। असम की बात करें तो खासकर नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि लुक ईस्ट बहुत हुआ, अब एक्ट ईस्ट की बारी है जी, जहां हमारा सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए आपका क्या रोड मैप है? निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सोच है। दक्षिण पूर्व एशिया जो इससे इस देश का बहुत ही सांस्कृतिक, सामरिक और भावनात्मक नाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको मजबूत करके इन देशों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं और इसके लिए ये राज्य एक हमारे मजबूत आधार होंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने का यह प्रयास भी देखा जा सकता है कि हमारे उन तमाम देशों के साथ मेरे हर स्तर पर बहुत ही गहरे संबंध बने और मैं भी एक राज्यपाल के रूप में मेरी सोच रही है कि मैं ऐसे लोगों के साथ एक सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान करके, संवाद करके और केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों के बीच में सांस्कृतिक, सामाजिक और इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम बढ़ाएं जिससे उस देशों से जो प्रधानमंत्री जी की भावना है उसके अनुरूप हम योजनाएं करें और योजनाओं को बनाएं और उसको ज़मीन पर क्रियान्वित करके जो प्रधानमंत्री जी की भावना है जो वस्तुतः वो तो पहले भी कहा करते थे कि जब कहीं भी जाते थे तो कहते थे कि यदि आप नॉर्थ ईस्ट नहीं गए तो उस समय कहते थे तो आपने देश नहीं देखा। और उसका परिणाम है कि मैं तो जब सिक्किम में था तो लोग कहते थे, मैं तो धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बोलते थे कि आज ये जो इतनी समृद्धि बढ़ी है, लोगों को खुशहाली बढ़ी है, गांव-गांव शिक्षा बना है, तमाम ऐसे केंद्रीय योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया और उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने और वहाँ लोगों के टूरिज़्म बढ़ा, उस दिशा में उससे उस राज्यों की इकोनॉमी बढ़ी। लोगों ने इस काम के आधार पर जो है ना हित अनहित पशु पक्षी जाना, कहाँ हमारा कल्याण है कहाँ नुकसान है पशु पक्षी भी जानते हैं और इसके आधार पर लोगों ने प्रधानमंत्री जी की नीतियों को पसंद किया और वो जुटे। उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया राज्यों के साथ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए योजनाएं बनाना और राज्य के खास करके वो तो कई स्तर पर देश में भी वो कहते हैं, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का उन्होंने संदेश दिया। हम सभी राजभवनों में, पहले ऐसा कभी नहीं होता था, सभी राजभवनों में सभी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाए, वहाँ का खान पान, वहाँ सांस्कृतिक और उस राज्य में जो लोग रहते हैं उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ की कल्चरल गतिविधियों को देखा जाए। तो एक जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बहुत हो रहा है। उसी क्रम में दक्षिण पूर्व एशिया के भी राज्यों के बीच में रिश्ता बनाने के लिए हमारे ये राज्य बड़े बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं
और हम राज्य के लोग भी ये तमाम ऐसी योजनाएं बनाएंगे और जहां ज़रूरत पड़ेगी केंद्र की मदद से इस रिश्ते को मजबूत कराने में राज्य भी उसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के साथ खड़ा रहेगा। सर, दोनों राज्यों की अगर सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो सबसे पहले असम के लिए आपकी प्राथमिकता जानना चाहूँगी। असम एक निश्चित रूप से इस समय तेजी से प्रगति की ओर, शांति की ओर बढ़ रहा है। बीच में जैसा सभी जानते हैं कि असम एक अशांत राज्य हो गया था, बाहर से आते थे तमाम प्रकार के आतंकवादी और वो गतिविधियाँ चल रही थी, लेकिन सब पर भारत सरकार के सहयोग से हमारी राज्य सरकार ने भी उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है। वह तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हुआ है। और अग्रसर होने में एक राज्यपाल के रूप में हमारी जितनी भूमिका हो सकती है पूरा योगदान दे करके और एक समृद्ध भारत, विकसित भारत, पुष्पित भारत की दिशा में हमारा राजभवन पूरा तरह से उनके साथ खड़ा रहेगा। सर, मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार है आपके पास। जी जी। मणिपुर को लेकर क्या प्राथमिकताएं? ये जब मैं वहाँ शपथ लिया तो लोगों ने पूछा कि क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं। मैंने कहा राज्य में सौहार्द, सद्भाव और यहाँ का सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि में संवर्धन हो, मेरा इसी दिशा में प्रयत्न होगा। बिल्कुल सर, अगर मैं राज्यपाल की जो अभी कॉन्क्लेव हुई थी वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने, प्रेसिडेंट जी ने और वाइस प्रेसिडेंट जी ने बहुत बेहद महत्वपूर्ण मैसेजेस दिए थे। एक प्रधानमंत्री जी की बात रही कि कैसे राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में एक पुल का काम करेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे। तो क्या आपके पास रोड मैप है ये समन्वय बढ़ाने का, क्योंकि असम और खासकर मणिपुर ये बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य हैं? भारत माता अपने पुत्रों का स्वयं चयन करती है। मैं आश्चर्य करता हूँ, 10 बजे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी राज्यपालों के साथ सघन संवाद करके और तमाम वो संभावनाएं जिससे राज्य के में संवाद का, राज्य और केंद्र से बीच में एक बेहतर समन्वय का, वहाँ के विकास का क्या स्वरूप हो सकता है, इसके सबके अपने अपने विचार लिए और जिससे तो ऐसे कौन कौन से हम कार्यक्रम लें जिससे राज्य का, हमारे केंद्र के प्रति विश्वास और उनका सहयोग, इनमें राज्यपाल एक भूमिका के एक समन्वय के भूमिका में खड़े हों, ऐसे तमाम चीज़ों का उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दिया। अब जैसे जनजातीय क्षेत्र में बहुत सारी उपेक्षित पड़े थे, उन क्षेत्रों को चिन्हित करिए, उन गाँव में जाइए, एनसीसी को दीजिए, सुकन्या समृद्धि के दिशा में करिए, अमृत सरोवर का दिया, हर गांव को नल से जल पहुंचाइए। इसमें आप सब स्वयं मौके पर पहुंच करके उनके इस चीज़ों में योगदान, भारत सरकार की बहुत ऐसी नीतियां हैं जो बहुत जनोपयोगी हैं। अगर ऐसा हम करें तो वस्तुतः जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, एक समृद्ध भारत का जो परिकल्पना किया है, वह राज्य में राज्यपालों की एक बेहतर भूमिका हो सकती है। इस दिशा में एक व्यवहारिक विचारों का आदान प्रदान हुआ और सभी राज्यपालों के तमाम, चूँकि ये भी विविध क्षेत्रों से बहुत अनुभव युक्त लोग आए हैं, लेकिन बहुत से अनुभव तो रहते हैं लेकिन कोई साझा करने वाला नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक इतना देश दुनिया का एक इतना मजबूत नेता, एक पूरी तरह से एक व्यवहारिक जगत से क्षेत्र में उन्होंने तमाम प्रकार के मार्गदर्शन किए। इससे हम राज्यपालों को भी बहुत सारा ऐसे बिंदुओं पर जहाँ हम नहीं पहुँच पाते थे उधर भी उन्होंने ज्ञान कराया और कहा कि जैसे जनजाति समाज, जनजाति गौरव दिवस और बाबा साहब के तमाम विचार और किसानों के लिए गोष्ठियाँ करिए, विश्वविद्यालय में शिक्षा, नई शिक्षा नीति को कैसे हम बना करके वहाँ की राज्य की भाषाओं को कैसे उन्नत करें, तमाम ऐसे चीज़ें जिससे राज्य की भावना को सम्मान करते हुए केंद्र की यह ऐसे विकास परक नीतियाँ वहाँ तक पहुँचे, उसमें एक पुल का काम ये राज्यपाल करेंगे, ऐसा पाठ भी बताया। ऐसे जहाँ हमारा रास्ता रुक रहा था उस दिशा को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति महोदया ने, हमारे उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया। इससे हम सबका बहुत ज्ञानवर्धन हुआ और जिसको हम उनके दिशा निर्देशों के अनुसार, उनके मिले ज्ञान से हम राज्य के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सर, सिक्किम का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। वो जैसे कभी ज्यों गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे, अविगति गति कछु कहत न आवे। लोग बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक खेती होती है वहाँ का, ये सब चीज़ें देख करके और बहुत ही स्वच्छता में वह बहुत आगे चल रहा है।
वो जो बेटियां बढ़ेंगी देश बढ़ेगा। तो हाँ, बेटियां आज भी रात्रि में 12 बजे बड़े आराम से निश्चिंत होकर के बेटी यानी है मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे की माता मेरी माता है, पर का धन मेरा मतलब परद्रव्येषु, दूसरे का धन मेरे लिए ढेले के मिट्टी के समान है। वह दृश्य वह आचरण वहाँ होता है। नो वीआईपी कल्चर वहाँ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, स्पीकर के अलावा किसी के पास एक गनर भी नहीं मिलता है। कोई वीआईपी कल्चर नहीं। एक अच्छा राज्य, शांतप्रिय राज्य और सुसंस्कृत राज्य है। लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे ही राज्य से फिर आगे मुझे माँ कामाख्या जी की इस नगरी में ऐसी माता के हित पावन भूमि की सेवा करने का महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने दिया है, तो मेरे लिए शुभ अवसर है। चलते चलते सर, असम और मणिपुर के लोगों के लिए आपका संदेश। बढ़ते सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी असम और बहुत ही प्राकृतिक दृष्टि से जिसका बहुत मजबूत नाता रहा है इस देश से, ऐसे राज्य में एक बार फिर से जो तेज़ी से अब खुशहाली की ओर अब बढ़ रहे हैं, शांति सौहार्द की ओर बढ़ रहे हैं, ये और तेज़ी से अपनी मजबूती आए इनके अंदर। मैं इसी दिशा में मेरा प्रयास भी है। इसी के लिए मैं माँ कामाख्या जी से प्रार्थना भी करता हूँ। और इन दोनों राज्यों में हमारा ये तो बेहतर राज्य है। जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ बीच में आई आज मणिपुर में, वह भी तेज़ी से उसका निस्तारण हो रहा है और शांति की ओर बढ़ते हुए अपने सौहार्द और सद्भाव की ओर बढ़ रहा है। उसमें मेरा योगदान सुनिश्चित हो सके, माँ कामाख्या से यही प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। संसद टीवी से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।